آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کی یاد میں آج بنایا گیا میونسپل کارپوریشن میں یوم شہداء۔ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے شہداء کو کیا گیا خراج عقیدت پیش۔ ناندیڑ میں MLA چکھلیکر کا سنیترا پوار کے لیے شکریہ۔ ممکنہ نائب وزیر اعلیٰ حلف برداری سے قبل کارکنان کو سنبھالنے پر خراج تحسین۔ ضلع پریشد و پنچایت سمیتی انتخابات سے ہزاروں اساتذہ کے CTET امتحان پر خطرہ۔ ایک ہی تاریخ پر پولنگ اور امتحان سے پریشان اساتذہ نے ڈیوٹی سے چھوٹ دینے کا کیا مطالبہ۔ ہنگولی کے سینگاؤں نگر پنچایت دفتر میں لگی بھیانک آگ، اہم سرکاری ریکارڈ جل کر خاک۔ شارٹ سرکٹ شبہ، مکمل جانچ اور ذمہ داروں پر کارروائی کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے یوم شہداء عقیدت کے ساتھ منایا۔ میونسپل ہیڈ کوارٹر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں سبھی افسران اور ملازمین موجود رہے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حکومت کے سرکاری سرکولر کے تحت 30 جنوری کو صبح 11 بجے میونسپل کارپوریشن ہیڈ کوارٹر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ دن ہر سال ملک بھر میں ان شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل کی قیادت میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر رتوجا پاٹل، ثقافتی آفیسر شمبھو وشواسو، انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن آفیسر توصیف احمد، سیکیورٹی آفیسر بالو سونونے سمیت مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین موجود تھے۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات 2026 کے پیش نظر ضلع سویپ ٹیم نے پیٹھن کا دورہ کیا، جہاں آریہ چانکیہ ودیا مندر کی طالبات نے ووٹر بیداری کے موضوع پر پتھ ناٹک پیش کیا۔ اس موقع پر طلباء کو جمہوریت میں حصہ لینے کی اہمیت بھی بتائی گئی۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات 2026 کے پیش نظر ضلع سویپ ٹیم نے پیٹھن میں جاری ووٹر بیداری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مقامی سویپ ٹیم کے سنتوش پوار اور کرن گاڑیکر نے ٹیم کو تفصیلات فراہم کی۔ آریہ ودیا مندر میں طلباء کے ساتھ بیداری کے موضوع پر بات چیت ہوئی۔ سویپ نوڈل آفیسر بھگوان کامبلے اور سنجیو سنار نے طلباء کو رہنمائی دیتے ہوئے جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے 100% ووٹنگ کی اپیل کی۔ اس موقع پر طالبات نے ووٹر بیداری پر مؤثر پتھ ناٹک پیش کیا، جس پر سنجیو سنار نے انعام بھی دیا۔ پروگرام میں ششیکانت اوباڑے، ونود راٹھوڑ، پروین نروڑے سمیت ٹیم کے ارکان موجود تھے، جبکہ ہیڈ مسٹریس جوشی میڈم اور اساتذہ نے تعاون کیا۔ ناندیڑ میں MLA چکھلیکر نے سنیترا پوار کے نائب وزیر اعلیٰ عہدے کی حلف برداری پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی کارکنان کو حوصلہ دیا اور پارٹی و ریاست کے مفاد کو ترجیح دی۔ رکن اسمبلی چکھلیکر نے کہا کہ نیشنلسٹ کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ میں سنیترا پوار کے نام کی توثیق ہوگی اور اس کے بعد نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی اور ریاستی سطح کے دکھ کے باوجود سنیترا پوار نے کارکنان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے کارکنان کو سنبھالنے اور ماں جیسا سہارا دینے کا کردار ادا کیا، جس پر وہ دل سے شکر گزار ہیں۔ چکھلیکر نے کہا کہ انہوں نے کارکنان کے دل کی آواز کو سمجھا اور دکھ کو ایک طرف رکھ کر پارٹی اور مہاراشٹرا کو ترجیح دی۔ आज राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल आणि बैठकीमध्ये आदरणीय सुनेत्रावहिनी पवार यांचं नाव निश्चित होईल आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी होईल असं मला वाटतं। खरं तर मी आदरणीय वहिनींचं एक राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता म्हणून मनापासून अभिनंदनही करेन की एवढा मोठा दुःखाचा डोंगर त्यांच्यावर आणि पूर्ण महाराष्ट्रावर असताना कार्यकर्त्यांच्या भावनाचा आदर करून त्यांनी कार्यकर्त्यांची भावना ओळखून या सगळ्या गोष्टीला संमती दिलेली आहे। खरं तर यावरूनच लक्षात येईल
की कार्यकर्त्यांना सांभाळण्याची भूमिका, एक मायेचा आधार कसा द्यावा ही भूमिका आदरणीय वहिनींनी घेतली. त्याबद्दल मी वहिनींचं नांदेड जिल्ह्यातील तमाम जनतेच्या वतीनं आणि राष्ट्रवादीच्या वतीनं आभारही मानतो की आमच्या सगळ्या भावना आपण ओळखल्या, आमचा अंतःकरणातला टाहवा आपण ओळखला आणि दुःख बाजूला सारून माझा कार्यकर्ता, माझी राष्ट्रवादी, माझा महाराष्ट्र हे समजून आपण आम्हाला सर्वांना जे मान्यता दिली त्याबद्दल मी मनापासून, अंतःकरणापासून आदरणीय वहिनीचा आभारी आहे. जालना में अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने पिंपरी चिंचोड़ शहर का नाम आनजहानी नायब वज़ीर आला के नाम पर अजीत नगर रखने का मतालबा किया. तंजीम के मुताबिक अजीत दादा पवार की क़यादत से शहर को आलमी सतह पर शनाख्त मिली है. ज़िला जालना के अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अहदेदारान ने मुतालबा किया कि पिंपरी चिंचोड़ शहर को अजीत नगर का नाम दिया जाए. उनका कहना है कि अजीत दादा पवार की क़यादत और मनसूबाबंदी से पिंपरी चिंचोड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एशिया की बड़ी कॉरपोरेशनों में शुमार होने लगा है और शहर को आलमी सतह पर पहचान मिली है. तंजीम के मुताबिक ये मुतालबा अवामी नुमाइंदों और ज़िला कलेक्टर के ज़रिए वज़ीर आला तक पहुँचाया गया और जल्द मस्बत फैसला लेने की अपील की गई है. महासंघ आम्ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ व मराठा क्रांती मोर्चा व सर्व सामाजिक संघटनेच्या वतीने असा एक ठराव घेतलेला आहे की पिंपरी चिंचवड या शहराला अजित नगर असे नाव द्यावे. त्याचं कारण असं, एक छोटंसं गावखेडं, त्या गावखेड्यामध्ये ऑटोमोबाईल्स हॅब आणला, त्याचबरोबर आशिया खंडातली सर्वात मोठी श्रीमंत महानगरपालिका अशी ओळख निर्माण करून दिली व वेगवेगळे प्रकल्प आणून एक भारतामध्ये चांगलं पिंपरी चिंचवड स्वच्छ, सुंदर आणि आगळं वेगळं नाव करण्यासाठी जे प्रयत्न अजितदादाच्या यशस्वी प्रयत्न झाले, त्या प्रयत्नामुळेच आज पिंपरी चिंचवडचं नाव आशिया खंडामध्ये सर्वात जास्त आहे. त्याकरिता आज आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री असेल यांच्यापर्यंत, त्याचबरोबर ईमेलद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन दिलं आहे की पिंपरी चिंचवड शहराला अजित नगर असे नाव देण्यात यावे. बदनापुर में अजीत पवार के ताज़ियती इजलास में ऐलान किया गया कि नई नगर पंचायत इमारत का नाम अजीत दादा पवार के नाम पर रखा जाएगा. मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आनजहानी लीडर की खिदमत को याद किया. रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार के तैयारा हादसे में इंतकाल के बाद रियासत भर में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद हो रहे हैं. बदनापुर नगर पंचायत दफ्तर में भी कुल जमाती ताज़ियती नशिस्त हुई, जहां मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश किया. MLA नारायण कोचे ने कहा कि तरक्याती विजन रखने वाला लीडर हमसे जुदा हो गया. ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का नुकसान है. उन्होंने कहा कि आइंदा बदनापुर में नगर पंचायत या पंचायत समिति की नई इमारत बनने पर उसे अजीत दादा का नाम देने की कोशिश की जाएगी. आमच्यासाठी दुर्दैव आहे, पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, अजित दादाच्या नावानं बदनापूरमध्ये एखादी गोष्ट जी करता येईल ती नगर पंचायत असून पंचायत समितीच्या माध्यमातून शहराच्या दृष्टीने हातरीची मोजा आहे. इथं आपण एखादी नवीन इमारत तयार करीत असेल, तिला आपण त्याला काही नाव देता आलं की बघा मला जे करता येईल ते करा. दादा काही एका पक्षाची हानी नव्हे, तरी महाराष्ट्राची हानी आहे. पक्ष त्यांच्या विचारसरणी, त्यांचं वागणं, त्यांचं बोलणं आणि तुम्हा आम्हाला दिलेले संस्कार हे महत्त्वाचे. आंबडला बी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम त्यांनी 10:30लाच ठेवला आहे. मी आत्ता बोललो, म्हणलं की थोडा लेट येतो बदनापूरचं करून. बारामती की ज़राई नुमाइश प्रोग्राम में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के दौरान कारकुनान ने दोनों नेशनलिस्ट पार्टियों के इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार किया. साबिक वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने इस मुलाकात की तफसीलात पेश की. बैठकीला जी विलीनीकरण बैठक झाली ना, तिला तुम्ही हजर होते, व्हिडिओ मध्ये दिसते. ठीक आहे ना, म्हणजे त्याला मला नाही कळत काय त्याला काय बोलायचं. काय झालं होतं नेमकं बैठकीमध्ये, काय झालं होतं बैठकीत काय झालं एकदम म्हणा काय म्हणायचं तुम्हाला. बैठकीला 17 जानेवारीला गौरव बैठक बूम खाली घेतला. आम्ही गेलो होतो कृषी प्रदर्शनाला. कृषी प्रदर्शनाच्या निमित्ताने दादांनाही पवार साहेबांनी नाश्त्याला बोलवलं होतं. दादा नाश्त्याला आले होते. आमची बैठक त्या निमित्ताने अनौपचारिक बैठक झाली. इच्छा दोन्ही पक्षाची एवढी आहेच की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि आम्ही साहेबांना विनंती केली की साहेब आपण एकत्र राहिलं तर बरं होईल, एवढीच. बाकी काहीच नाही. एवढंच. थँक्यू.
ओके, थैंक यू। वाज़ेह हो कि अजीत पवार के इंतकाल के बाद दोनों ही नेशनलिस्ट धड़ों के मुमकिना इत्तेहाद की क़ियास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। जालना में शिवसेना लीडर और MLA अर्जुन खोतकर ने कहा है कि अगर दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो वो इसका खैर मकदम करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आम्ही असं टी व्हीवरती ऐकतोय, पण अजून तशी ऑथेंटिक बातमी काय आली नाही. आता ठीक आहे, तो त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. त्यांचं काय बोलणं झालं काय नाही मला माहीत नाही, परंतु होत असेल तर त्यांचं अभिनंदन, शुभेच्छा आहेत त्यांना आमची. हो, माननीय थोरले पवार साहेबांचं ते ऐकलं मी आज टी व्हीवरती, परंतु नंतर काय घडामोडी घडल्या मला याची जाणीव नाही. याच्यामध्ये भारतीय आपलं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3-4 नेते आघाडीवर होऊन ते काही खलबत्ता करत होते हे पाहिलं मी, परंतु काय माहीत नाही आता काळाच्या पडद्यामध्ये काय दडलेलं माहीत नाही मला. 7 और 8 फरवरी को CTET इम्तिहान और इलेक्शन ड्यूटी एक साथ होने से हज़ारों असातिज़ा इम्तिहान में शरीक नहीं हो पाएंगे। टीचर्स तंजीमें इंतज़ामिया से मुतबादिल इंतज़ाम या छूट देने का मतालबा कर रही है। 7 और 8 फरवरी को होने वाले मरकज़ी टीचर अहलियती इम्तिहान CTET के दौरान रियासत के 12 अजला में 7 फरवरी को पोलिंग भी होगी। इंतखाबी अमल के लिए बड़ी तादाद में असातिज़ा को ड्यूटी दी गई है, जिससे वो इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक TET या CTET पास करना लाजमी है, इसलिए गैर हाज़िरी से मुलाजिमत, सीनियरिटी और तरक्की मुतासिर हो सकती है। इम्तिहान और इलेक्शन ड्यूटी एक साथ आने पर असातिज़ा में नाराज़ी है। टीचर्स तंजीमों ने मुतालबा किया है कि CTET के उम्मीदवार असातिज़ा को इंतखाबी ड्यूटी से छूट दी जाए या मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। अब सबकी नज़र इंतज़ामिया के फ़ैसले पर है। आम खास मैदान में जारी एजुकेशन एक्सपो में 1 फरवरी 2026 यानी इतवार को सपहर 4 से शाम 11 बजे तक स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की जानिब से सोशल एरिना नामी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये इत्तला स्कूल के तलबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। स्कूल की तालिबा शेख ताइबा और उनके साथियों ने बताया कि आज माशरे में कई समाजी बुराइयां मौजूद हैं और अगर इस जानिब अभी तवज्जो न दी गई तो उनमें तेज़ी से इजाफ़ा होने का इम्कान है। लिहाजा इन बुराइयों की रोकथाम के लिए स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल के तलबा ने सोशियो एरिना के उन्वान से एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें जहेज़ मंशियात के इस्तेमाल से माशरे को पहुँचने वाले नुकसानात और इसी तरह के तकरीबन 40 मसाइल और उनके हल के लिए कई ठोस हल पर यह प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। स्कूल के तलबा व तालिबात ने शहरियान से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। सर, सबके लिए ये मैसेज, ऐसे भी है कुछ मुस्लिम्स जो जिन्हें पता है कि इस्लाम में मेहर का सिस्टम है, स्टिल वो लोग कल्चर के दबाव में आके ट्रेडिशन की वजह से अभी भी दहेज का सिस्टम मुस्लिम्स में भी चल रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम सारे इंडियंस के लिए है, क्योंकि दहेज डाउरी एक इंडियन प्रॉब्लम। हाँ सर, उसके ऊपर शादियों में फजूल खर्चा, वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ फूड, सारी चीज़ें जो हम लोग जिसे हम सोशल प्रॉब्लम ही कंसिडर नहीं कर रहे, जो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर अनहेल्दी करती जा रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं टू ऑल द प्रेस मेंबर्स फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड बीइंग प्रेजेंट विद अस. योर प्रेजेंस truly means a lot. At Sociarena, we are trying to talk about social issues that affect each one of us in one way or the other way. इसमें से एक important topic है press freedom. I personally feel that you all are closely connected to press freedom because you all are the one who bring society's voice forward. जब मीडिया स्ट्रांग होती है तब सोसाइटी भी अवेयर होती है. That's why we believe that you all should be definitely be a part of this exhibition. These are not just our issues, these are everyone's issues because everyone is the member of society. और जब बात सोसाइटी की हो तो हर किसी का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है. Thank you for giving your presence here and supporting this initiative. Assalamu alaikum. Thank you. पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर. आई एम शेख ताइबा फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल इन विच कल जो प्रोग्राम होने वाला है सोशोरीना का, वो एक स्टूडेंट लेड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम कुछ सोशल इश्यूज़, रियल सोशल इश्यूज़, स्टिल मॉडल्स म्यूज़ियम स्टाइल में सबको प्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स के साथ कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशंस भी बताएंगे. हमने 35+ मॉडल्स, 35+ एक्टिव टॉपिक्स लिए हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ये सोशोरीना का प्रोग्राम कल 1 फरवरी 2026 को
5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक होने वाला है एट आम खास मैदान। खैरुल मोमिनीन उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीमी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा प्रोजेक्ट्स पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। स्कूल के ज़िम्मेदारान डॉक्टर फैसल खान ने बताया कि तलबा में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से हर साल तालीमी नुमाइश मुनक़िद की जाती है, जिसमें स्कूल के टीचर्स की रहनुमाई में तलबा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और तालीमी तौज़ीहात तैयार करते हैं। साल रवां भी इसी तरह की एक तालीमी नुमाइश रखी गई, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए हैं, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। बिलखुसूस तलबा की हौसला अफजाई के लिए आए मेहमान हाजी इसहाक खान, डॉक्टर सज्जाद हाशमी, अमेरिका से आए अब्दुल बासित खान, तलत इलाही, आदिल खान, मोहम्मद बशीर और बिलाल खान ने इन तालीमी तौज़ीहात की खुलकर तारीफ़ की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है ये साइंस एग्ज़िबिशन का नज़्म रखा गया था स्कूल में, तो 2-3 चीज़ें जो अच्छी भी दिखी, जिस पे बहुत इम्प्रेसिव रहा। एक तो रहा कि कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, जैसे कम्युनिकेशन के हिसाब से, और कॉन्फिडेंस विद नॉलेज भी देखने को मिला। स्पेशली जिस इलाके से बच्चे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस इलाके में रोज़ बरोज़ जो है उनको इस तरीके का एक्सपोजर मिलता वो सीखने का। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब होने की वजह से एक साइंस की नॉलेज भी उनको मिली, वो वेरीफाई भी हो पाई कि वो सही है नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखकर काफ़ी खुशी हुई। बच्चों में जो जज्बा है, एक क्यूरोसिटी है साइंस को सीखने का, समझने का। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाली रटने से इंसान साइंस समझ नहीं सकता, उसके लिए उसको समझना, उसमें गौर व फिक्र करना। जैसा कुरान में ख़ुद कहा गया है कि भाई तुम अपने अतराफ़ की चीज़ों में गौर व फिक्र नहीं करते क्या। तो ये बुक से बाहर निकल कर, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये बुक से बाहर निकल कर अपने अतराफ़ की चीज़ों में क्या गौर व फिक्र कर सकते हैं कि अल्लाह ने दुनिया कैसे बनाई है, दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, इंसानी निज़ाम, इंसानी आज़ा कैसे हैं, इंसानी जो पूरा जिस्म काम करता है वो कैसे करता है, प्लांट्स का कैसे सिस्टम है, प्लस वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ये सारे मॉडल्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बनाए थे। बहुत ही अच्छे मॉडल थे और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 तारीख जनवरी 2026 में खैरुल मोमिनीन उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल के अंदर साइंस नुमाइश रखी गई, जिसमें प्राइमरी से लेके 10वीं जमात तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया और मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस, मराठी, इंग्लिश, तारीख़, जोग्राफिया, ये सब जो है उन्होंने चार्ट और मॉडल्स बनाए। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और इसके अंदर जो है मेहमान खुसूसी बोलकर जो है बासित साहब और डॉक्टर साहब आए। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के सदर डॉक्टर अफजल साहब, सोसाइटी के सेक्रेटरी सायरा बानो मैडम, सोसाइटी के ज़िम्मेदारान कमेटी के लोग, तमाम लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो है साइंस एग्जीबिशन देखे मेहमानों ने भी, और जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस, बोलने का, मॉडल बनाने का जज्बा और तरह तरह के नए टेक्निक जो है मॉडल बनाए बच्चों ने, और पूरे जो हिम्मत और अफजाई के साथ मुकम्मल बच्चों ने उसका तफसील बयान किया मेहमानों के सामने। और स्टाफ के भी उसमें काफ़ी मेहनत रही, बच्चों की रहनुमाई की है। प्राइमरी हाई स्कूल के सदर मौलिमा, दिगर उनके साथीदार मौलिमा टीचर्स ने भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कामयाब रहा एक तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर। ज़िला हिंगोली के सेनगांव नगर पंचायत दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे अहम कागजात जल गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, मगर इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया है। वाज़ेह हो कि सेनगांव नगर पंचायत में अचानक आग भड़क उठी, जिससे दफ्तर के कई अहम कागजात और रिकॉर्ड जल गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ताहम असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। आग लगने के बाद इलाके में चहमगोइयाँ भी तेज़ हो गई। नगर पंचायत के सीईओ योगेश मीना ने मौके का मुआयना किया और कहा कि वाक़े की मुकम्मल जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर कोई कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ताल्लुका बदनापुर के शेलगांव में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर पर हमला और गाली गलोच का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। ताल्लुका बदनापुर के शेलगांव में वाक़े महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की ब्रांच मैनेजर ढालेश्वर मदनलाल बोपचे ने शिकायत दर्ज कराई कि वो बैंक का काम कर रहे थे। तब 30 जनवरी को
गोविंद चेचानी ने BCID शुरू करने की दरख्वास्त की। मैनेजर ने बताया कि ये सर्विस सीनियर दफ्तर की जानिब से बंद की जा चुकी है। उसके बाद वो चंद लोगों के साथ दोपहर के करीब बैंक पहुंचे और मैनेजर के साथ मारपीट और बदजुबानी की। शिकायत पर गोविंद चेचानी, प्रेम चेचानी, संतोष अंभूरे, मनोज अंभूरे और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। कायगांव से देवगांव तक सड़क पर गड़े ड्राइवरों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन रहे हैं। मरम्मत का काम धीमी रफ्तार से जारी है, जिससे रोज़ाना छोटे बड़े हादसात पेश आ रहे हैं। शहरियान इंतज़ामिया से सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत का मुतालबा करने लगे हैं। कायगांव ता गंगापुर, लासूर और देवगांव सड़क की डामरीकारी को तकरीबन 1 साल होने को आया, मगर काम अब भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। सिद्धनाथ वाडगांव से शेलगांव तक करीब 10 किलोमीटर हिस्सा ही मुकम्मल हो सका है। मालिंजा से गंगापुर के दरमियान सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाइस रोज़ छोटे बड़े हादसात पेश आ रहे हैं और ड्राइवरों को शदीद दुश्वारी हो रही है। ज़्यादा ट्रैफिक वाले इस रास्ते पर पहले भी जानी व जिस्मानी नुकसान हो चुका है, मगर मसला बरकरार है। शहरियान और गाड़ी मालिकान ने कम अज़ कम गड्ढे फौरी भरने का मुतालबा किया है। सध्या आता लासूर रस्ता इतका खराब झालेला आहे की त्या रस्त्याला दरवेळेस आम्हाला एक जर गंगापूरला दवाखान्यात पेशंट जर न्यायचं म्हणलं तर पहिले 5 ते 10 मिनटं लागायचे, आता अर्धा तास लागतो। गाडी जर इमर्जन्सी पेशंट असलं तर या रस्त्याने कसं काय जाईल? जर तुम्ही या रस्त्याला जर खड्डे बघितले तर ॲक्सिडेंटचं प्रमाण बी आता वाढत चाललेलं आहे। याला जबाबदार कोण आहे? या रस्त्याचं काम लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे। तुम्ही विचार करा की जर सामान्य माणूस आता इथं या रस्त्याला जास्तीत जास्त शेतकरीच जातात आणि त्यांना जर गाडीचं नुकसान झालं तर हे भरपाई करणं त्यांना सोपं नाही, तर याच्यावर थोडी लवकरात लवकर कारवाई करायला पाहिजे। गंगापूर, मी राहायला गंगापूरला आहे। मालोनचा गंगापूर हा माझा दररोजचा रूट आहे। दिवसात माझ्या 2-2 चक्रा होतात, पण एखादा जर पेशंट आणायचं ठरलं तर कमीत कमी अर्धा तासाच्या वर 8 किलोमीटरचा प्रवास आहे। याच्यावर सत्ताधारी असो किंवा इतर आता कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं वाटतं, कॉन्ट्रॅक्टदारांनी लवकरात लवकर लक्ष देऊन ये गड्ढे तरी बुझवण्याचं काम करावं। गंगापुर में साबिक पंचायत सदर सुनील कैरे ने अचानक नामजदगी वापस ली। नाराज पार्टी कारकुनान ने उनसे जवाब तलब किया और सियाही फेंकी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वाज़ेह हो कि सुनील कैरे को शेलगांव ग्रुप से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया था, मगर उन्होंने पार्टी क़यादत से मशवरा किए बगैर अचानक नामजदगी वापस ले ली। इस फैसले पर नाराज़ पार्टी कारकुनान ने उनसे जवाब तलब किया और सियाही डालने का वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इत्तलात के मुताबिक मौके पर उप शहर प्रमुख और इलेक्शन मुबस्सिर राजेंद्र दानवे और नंदू लब्दे समेत कारकुनान मौजूद थे। वाक़े के बाद सियासी हलकों में बहस तेज़ हो गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों की याद में आज बनाया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यौम शुहदा 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके शुहदा को किया गया खिराज अकीदत पेश। नांदेड़ में MLA चखलेकर का सुनित्रा पवार के लिए शुक्रिया। मुमकिना नायब वजीर आला हल्फ बर्दारी से कबल कारकुनान को संभालने पर खिराज तहसीन। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात से हज़ारों असातिज़ा के CTET इम्तिहान पर ख़तरा। एक ही तारीख पर पोलिंग और इम्तिहान से परेशान असातिज़ा ने ड्यूटी से छूट देने का किया मुतालबा। हिंगोली के सेंगांव नगर पंचायत दफ्तर में लगी भयानक आग, अहम सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट शुबा, मुकम्मल जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।